उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସତ୍ୟବାଣୀ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ସତ୍ୟବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥମ୍ବନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏକି ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆଉ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଇଏ ଜଣେ RSS ଦଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ RSS ଦଳରେ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହିଂସା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ କି କୌଣସି ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପାଳକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସେ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ କଲେଜରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ। ସେ କଲେଜରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ନାମ ସବୁ ସେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ସେ ନାମର ଆଉ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ସିନା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଜେ ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପହଁରି ଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରି 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 ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରୁନଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଏହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ RSS ଦଳର ଜଣେ ଲିଡର ଆଉ
से विश्व हिंदूर जिते से सामिल हो गले से दल से दिन ठारू ख्रीस्टियन मान प्रति ताड़ना करने जीवन में एते राग एते क्रोध एते हिंसा बढ़ी चली से मिनटेट मध्य ख्रीस्टियन लोक मान गाड़ी न दे रही पार न प्रिय मैंने से चाहिए सबकिछ कर पारि थांते किंतु परमेश्वर ताको सुजोग देले ना से एठार प्रकाश करुछंती जे ख्रीष्ट धर्म को बंद करबा पई से गोटे चैलेंज रखिले से जेतले प्रचार करुथिले से चैलेंज रखिले ताको भाषण से कहले मो ख्रीस्टियन परिवार झील को बाहा हेबी एवं ख्रीष्ट धर्म को मु बंद करबी जो माने आज ख्रीष्ट धर्म रे आ धर्म परिवर्तन करुछंती से मनक मु रखिबी चैलेंज सहित से ख्रीस्टन परिवार झील को बाहा हैला चाकरी मध्य पाइला तथापि से कलेक्टर चाकरी करू 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 से बयस हेबार आ से नीलम रहीगले सी जो से रिटायर्ड हो रहीगले प्रिय माने तांको जीवन रे एक समस्या आरंभ हैला आ से समस्या धीरे 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 तांको जीवन को बदलाई देला प्रिय माने आज प्रभु महान अटंती परमेश्वर जो मैंने परमेश्वर को चैलेंज करती से मैंने किसी भी सफलता पाई पारे ना से मैंने केबे मध्य सफल हो पारे ना किंतु जो मैंने परमेश्वर को मानिबे परमेश्वर को आज्ञा पालन करेंगे से मैंने अनंत जीवन पाइबे प्रिय मैंने भिडियो को देखंतु तापर आपण माने निज ज्ञान पांतु निजे ज्ञात हो तो निजे भी जानतु जे वीडियो रे केते सत्यता रही से आरएसएस लीडर वीएचपी जने संघर विश्व हिंदूर जने मुख्य रूप से कार्य करुथिले तांको समस्त कार्य करबा विश्व हिंदू लोक माने समस्त कार्य तांको पर समर्पण कले सबु कार्य तांको दायित्व देले से दायित्व ने से कार्य कले किंतु कौन प्रकार कार्य करि पाले नहीं से आसंत माने ए वीडियो को देखा प्रिय मैंने से आम चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं आम सहित जोड़े हो रुहतु ए वीडियो को देखला पर माने प्रभुंकर जो महान शक्तिता आम जान करवा जदि आपण मानकर कौन मतामत थाए तेबे निश्चय कमेंट बॉक्स कमेंट करंतु धन्यवाद। मेरा जन्म गैर मसीही परिवार में हुआ था। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे गोदी में उठाकर जिन जिन मंदिरों में जाते थे वहाँ मुझे ले जाते थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ अगर कोई छोटा मंदिर भी दिखता तो वहाँ जाकर अपने जूते चप्पल निकालकर उन्हें नमन करता था। इस तरह से बहुत भक्तिवान था। और केवल इतना ही नहीं, जब कॉलेज ज्वाइन करना था तो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसे मैं बहुत मानता था। तो वहाँ तिरचंदूर के एक कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया और रोजाना शाम को जाकर मंदिर में दर्शन किया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, तिरुतनी, तिरुवरकाड, तिरुरंगन, तिरुपति, मारी मंदिर, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थानों पर मैं जाया करता था। और इस तरह से भक्ति मुझमें धीरे धीरे और ज्यादा हो गई। तो जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसके जरिए मैं आरएसएस से जुड़ा। आरएसएस से जुड़ने के बाद मेरे अंदर और कट्टरता आ गई, धर्म की कट्टरता बहुत बढ़ गई। और फिर उसके बाद रामेश्वरम मंदिर में जाने लगा। केवल इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद इस नाम का जो संगठन है उसके साथ भी मैं जुड़ गया और नागरकोइल में मैं संगठन का प्रचारक बन गया। और वहाँ पर जब मैं भाषण देता था तो लोगों के बीच बोलता था कि यहाँ लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ तक भी भाषण में बोला कि मैं किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करके उसका धर्म भी बदलूंगा, ऐसा चैलेंज किया। दरअसल किसी क्रिश्चियन को देखते ही मेरे बदन में आग सी लग जाती थी। बाइबल उठा के फेंक देता था। कोई अगर पर्चे बांटता दिखाई देता था तो मैं जाकर लेता
और फाड़ कर उसी के मुंह पर फेंक देता था। उन लोगों को खरी खोटी सुनाकर मैं उन्हें वहाँ से भगा देता था। बहुत गाली देता था कि ये क्या, जब देखो यीशु के बारे में बोलने चले आते हो। उन्हें मैं बहुत दुत्कारता था। इस तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद करीब 8 साल के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली। वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट थी और तूतुकुड़ी जिले में मैंने नौकरी ज्वाइन की। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी मेरे अंदर से कट्टरपंथी दूर नहीं हुई। जब भी कोई क्रिश्चियन मेरे पास किसी अनुमति के लिए आते थे तो मैं मना कर देता था। यहाँ तक कि चर्च के पास जो लोग रहते थे उन्हें दंगा करने के लिए उकसाता था। और इस तरह से बहुत सारे कार्य क्रिश्चियन लोगों के मैं अटका दिया करता था। और इसी दौरान नाल मावड़ी में दरार की प्रार्थना सभा करने के लिए मोहन सिंह लाजरस एक भवन बना रहे हैं, मैंने सुना। तब मैंने सोचा कुछ भी करके इस काम में रुकावट डालनी है और मैंने पास में ही बदली करवा ली, क्योंकि मैंने उनके काम में रुकावट डालने की ठान ली थी। बस मैं उसके लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ रहा था। और कुछ दिनों के बाद ही वहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए क्रिश्चियन अधिकारियों के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने नक्शे के हिसाब से पूरी जांच की, प्लान अप्रूवल वगैरह देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। ये क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं जीप के पास खड़ा हो गया। और तभी वहाँ का जो क्रिश्चियन अधिकारी था वो भाई मोहन के पास प्रार्थना करके चला गया। और तभी भाई मोहन सिंह लाजरस जो दूर खड़े थे वो जीप के पास आए और उन्होंने कहा, आओ तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता हूँ, कहकर बुलाया। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में खड़ा था। उन्होंने जैसे ही कहा, मैंने कहा मुझे नहीं करवानी, मुझे भी धोखा देना चाहते हो। जो तुम्हारे नाम की माला जपते हैं ऐसे किसी और इंसान को ढूंढो जाके, ऐसा बोल के झाड़ दिया। और भाई मोहन सिंह लाजरस मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। और मेरे साथ जो अधिकारी गए हुए थे, हम लोग जीप में बैठकर वहाँ से आ गए। और उसके बाद ब्रदर मोहन सिंह लाजरस से कुछ पूछने के लिए मैंने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और वो सुबेरे 10 बजे मेरे ऑफिस आ गए। मैंने उन्हें 3 बजे तक बैठाए रखा क्योंकि मैं अपने मन की भड़ास निकाल रहा था। और वो आकर बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। इतना सब होने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा कि खैर अब छोड़ो। उनसे मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट लिया कि जब भी मैं बुलाऊं आपको आना होगा, ठीक है कहकर वो चले गए। किस तरह से कुछ न कुछ अड़ंगा डाल के मैंने दूसरी कई जगहों के काम रुकवाए हैं, क्रिश्चियनिटी के विरोध में काम किए। इसके विरोध में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, खल रहा था। मैं अपने सरकारी काम को जितनी महत्वता दिया करता था उससे भी ज्यादा कुछ भी करके इस काम को रुकवाने की महत्वता दे रहा था। कोई कारण बताकर इस काम को रुकवाने की मैं योजना बना रहा था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं उनका काम रोक नहीं पाया। वैसी परिस्थिति में जैसा मैंने भाषण में कहा था कि किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी करूंगा और शादी के बाद उसे मैं अपने धर्म में बदलूंगा, ठीक वैसे ही एक क्रिश्चियन लड़की से एक शादी के मंडप में सबके सामने मैंने शादी की। वैसे भी जब मैं अपने ऑफिस से लौटता था तो शराब पीकर आया करता था, बहुत नशे में रहता था। और नशे में ही जब मैं पत्नी को बहुत दुख दिया करता था तो वो बहुत रोया करती थी। मेरे इस प्रकार के जीवन में अचानक से एक भयंकर बीमारी लग गई। करीब करीब 20 साल तक मेरे पेट में दर्द उठता रहा और वो दर्द अचानक से उठने लगता था। और जैसे ही पेट में दर्द होता मैं खड़ा नहीं हो पाता था, बस लेट जाता था और जोर से पेट पकड़कर रोने लगता था, लगता जैसे कोई आंतें निकाल रहा हो। और उसके बाद कुछ ही देर में बेहोशी आ जाती और 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहता था। वैसी हालत में लूज मोशन भी हो जाता था। इस तरह जब कभी मैं बाइक से जाता था या बस से जाता था या दफ्तर में रहता था तब भी मैंने बहुत ज्यादा दुख उठाए। इस बीमारी से ठीक होने के लिए मैंने कई मंदिरों में जाकर दर्शन किए, लेकिन मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हर साल नए साल के दिन सुबह उठकर तिरचंदूर के मंदिर में जाके पूजा करता था। सन 1995 जनवरी की 1 तारीख को जब मैं सुबह सुबह जाने की सोच रहा था, सिर में बहुत दर्द होने लगा, मैं जा नहीं पाया। काफी तकलीफ के बाद दोपहर में उठकर गांव के छोटे तालाब में नहाकर मैं अपनी बाइक पर जाने लगा। तो जब मैं तिरचंदूर जा रहा था, उस समय दोपहर का टाइम था और मैं मंदिर के लिए निकला हुआ था, तभी याद आया दोपहर में मंदिर के दरवाजे बंद होंगे। अब ऐसे में क्या करूं? जब मैं सोचने लगा तो मुझे नए साल की जो सभा होती है वो याद आई। तो सोचा देखता हूं लोग गवाही कैसे देते हैं, गवाही देने वाले पैसे लेकर गवाही देते होंगे। सोचकर मैंने भी रेट लगाया और सभा खत्म होने के बाद में जाऊंगा। ऐसा सोचकर मैंने अपनी बाइक को वापस घुमाया और सीधा नाल मावड़ी की सभा में गया। वहाँ एक आम के बगीचे में भारी सभा हो रही थी जिसमें लगभग 40,000 लोग होंगे। मैं लोगों की भीड़ में जाके पीछे खड़ा हो गया
और उस समय भाई मोहन सी लाजरस अपना प्रचार खत्म करने वाले थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब प्रभु से आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। यीशु से जो मांगना है मांगो, इस प्रकार से उन्होंने कहा। यह सुनकर मैंने भी धीरे से अपनी समस्या के बारे में कहा कि यीशु, मेरे पेट में एक लाइलाज दर्द होता है, सर में दर्द है, शराब की आदत है, इनसे मुझे छुटकारा चाहिए। तुरंत ही देखिए भाई तो आंखें बंद करके बोल रहे हैं और प्रभु बार बार उनसे मेरा नाम बुलवा रहे हैं। ये सेल्वराज कौन है? सेल्वराज के पेट का दर्द, सर का दर्द और शराब की जो आदत है, इन सबसे यीशु छुटकारा दिला रहे हैं। ये क्या जो मैंने यीशु से मांगा वही बात मेरे बोलने से पहले ब्रदर बोल रहे हैं। तभी मैंने यीशु को आकाश से उतरते हुए देखा। मेरी आंखें बंद नहीं थी, अपनी खुली आंखों से मैंने देखा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छू के मुझे पीछे निकला हो। मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। ठीक वैसे ही मैंने सामने से किसी को जाते देखा। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस ने कुछ और लोगों के नाम लेकर कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है। उसके बाद वो लोग गवाही देने के लिए मंच पर गए। सेल्वराज के नाम पर कोई नहीं गया क्योंकि मैं वहां ना जाकर वापस अपनी बाइक लेकर तिरचंदूर मंदिर जाने के लिए निकल गया। जब मैं जा रहा था मेन रोड पर होते हुए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अलवातिनी पहुंच गया। उस पहली तारीख की युवा प्रार्थना सभा में अनजाने में ही शामिल होने के बाद मेरे पेट में जो दर्द होता था, मेरे सर का दर्द, शराब की आदत, ये सब दूर हो गई। उसके बाद मेरे पेट में कभी भी दर्द नहीं उठा। इतना ही नहीं, मेरे मन के अंदर भी एक बदलाव सा आ गया। किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, ये मैं जान गया। पहले मैं अपने दफ्तर के अंदर सबसे चिढ़ा करता था। कोई फाइल आती तो उसे उठाकर फेंक देता था। कभी चपरासी को आने में देर हो जाती तो उस पर चिल्लाने लगता था। चाहे कोई भी हो, मैं उस पर गुस्सा हो जाता था। लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। यहाँ तक कि घर में भी सुख शांति नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मैं अपनी पत्नी से प्रेम से बात करने लगा, पहले गुस्सा किया करता था। इस प्रकार से मेरे जीवन में बदलाव आया। मेरे मन में एक संतुष्टि आ गई। उसके बाद मैंने यीशु को अपना उद्धारक बना लिया। वही एक सच्चे परमेश्वर हैं मानकर उन्हें अपना लिया। उसके बाद सभा में जाकर मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु से मेल मिलाप किया। केवल इतना ही नहीं, मेरी सरकारी नौकरी में भी यीशु ने आशीर्वाद दिया। मेरी पदवी में उन्नति दिलाकर डिप्टी कलेक्टर बनाया। करीब 7 सालों तक मैंने डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से काम किया। फिर मैंने रिटायरमेंट ले लिया। पहले एक जमाने में यीशु नहीं चाहिए ऐसा मंच पर भाषण दिया करता था। वहाँ पर लोगों के बीच में भाषण से नफरत फैलाने वाला मैं आज के दिन यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं ऐसा बोल बोल के लोगों में प्रचार करता हूँ। कभी मैं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से जुड़ा था। यीशु नहीं चाहिए ऐसा बोलने वाले मुझको यीशु खोजते हुए आए और मेरे लिए चमत्कार किया।